changes that has gone through under the new Income Tax Act 2025? Is there any changes in the Traces website of filing ETDS return and all? Let us hear from our convener and the speaker for today's here, Ravi Soni. To introduce him, I request CA Sikandar Yadav to kindly introduce him. Thank you, Vijay bhai. I don't think so CA Ravi Soni, present convener, needs any introduction in our study circle. Still, as a formality, I'll formally introduce him. He is a BCom from KC College, and he's a chartered accountant. He completed his chartered accountant along with DISA, FAFP, CCA from ICI. He is also a registered valuer. He is a CFA level 2 from USA. On experience and employment front, he works as a research analyst in CRISIL from January 2010 till September 2011. He is currently managing partner of RJ Soni and Associates. His achievements: he is a current convener at Borli Central CPE Study Circle. He is also founder trustee of Manavta Charitable Foundation. He is also panel member of Grievance Redressal Committee of BSc and CDSL. He has been invited as a speaker and honored by various institutions, including WIRC, SIRC of ICI, Income Tax Department, Indian Navy, New India Assurance, Axis Bank, Central Bank, and various other entities. Now, with this brief introduction, I request past convener Vijay sir to present memento. Now I request Ravi bhai to start the presentation. Thank you, Sikandar, for such a warm introduction. So, New Income Tax Act. Income Tax Act 1961 is a 60-year-old decade act. So, from 1st April 2025, they are coming up with the New Income Tax Act 2025. Before starting, we will just see what are the objective of the TDS. See, the government have introduced the TDS provision in from 2000 onwards, and right from that, every year they are coming up some new provisions or some new amendment. So the main objective of these TDS provisions were pay as you earn, there should be a regular cash flow, and widening of the tax base. Now all the provisions which we are seeing has been introduced because the government want to plug and detect the leakage of the tax revenue. Now one will ask, TDS provisions से tax revenue कैसे leakage कैसे plug होता है? So see, with the TDS provisions, the government's aim is that the income should come to the knowledge of the government. Once it is there in the circulation, or once the income information is there with the department, then one have to pay the tax on that only. So whenever we someone say about New Income Tax Act, the government is saying that we have reduced 5,000 words or 6,000 words. So the main objective or how they have reduced these provisions is that wherever there are similar provisions are there, they have tried to club all the provisions in one simple one section, and in that section they have introduced a tabular format. So this tabular format help us to understand the provision much better, much simpler, much easier way. So because of this tabular format, not only in section TDS provisions, there are many other provisions where the government have come up with the concept that full screen नहीं होगा ये F11 करके नहीं होगा, full screen करना है तो एक सेकंड को ये नहीं होगा, हाँ चलिए नहीं होगा.
पीपीटी लगा देगा ना उसमें। So the government have tried to simplify the languages. They have incorporated or consolidated all the similar provisions under one, and they have given it or presented it in a tabular format so that it is easier to understand, so that it can be one, a layman can also just see the table and understand it. The vision of 2025 Act is that the government approach is that digital first approach. That means all the data should be digitalized, all the data should be reached to the department in a proper way. They have given the clarity that all the complex nature transaction, they have tried to clear it out. They have made a reimbursement compliance framework. With this introduction of 2025 Act, they are coming up with Traces 2.0 also, which will be starting from 1st April 2025. So in this, they are coming up with the various ways through which they are trying to simplify the compliance work. The government wants that whatever difficulties a person is facing in their day-to-day compliance work, they're trying to reduce us. For example, I can give that in 2.0, generally whenever we are filing 26 QB, if there are multiple sellers are there, what we are doing right now, we are filing multiple types of return. If there are 4 sellers, 4 return. If there are 5 sellers, 5 return. But now only 1 return. In that 26 QB itself, which is form 141, they have given a portion that you can add multiple deduct itself. So wherever government is seeing that the person is facing this difficulty or deductee is facing this difficulty, they are coming up with the provisions or they are coming up with the solutions so that it becomes more easier and more simpler way. Second example I can give for 15G, 15H. Whenever the person is filing a 15G, 15H, first the person have to check कि मैं 60 साल का हुआ या नहीं हुआ. And if he is above 60, 15H, if he is below 60, 15G, तो वो criteria ही निकाल दिया. Now only one form, form 121. तो वो एक form रह दिया. It is easier, it is simpler कि कोई भी form fill up कर सकता है. So in this way, they have come up various facilities. They have come up with the various forms, which is going to help us or which is going to reduce our day-to-day compliance work. Now in 2.0, they are also coming up that the filing, currently what we are doing, we are uploading the return on Traces portal, e-filing portal, but now they are coming up with Traces portal itself. Second, they are coming up that instead of filing using a software for small return, directly on the website, you can just upload the transaction and it will be uploaded. So no new software is going to required for small taxpayers. Yeah. Small taxpayer, currently it has not been defined, but as per the wording, or if we take the reference, it is that the turnover should be between 2 to 5 crore rupees and the profit should not be more than 50 lakh rupees. So if these two criteria is missed, then a person is a small taxpayer. This is the compliance timeline. From 1st April 2025, partners TDS was introduced. Partner TDS was introduced, that is section 194T. Then from 1st April 2026, they are coming up with the Income Tax Act. From October 1, 2026, they are coming up with the provision that a non-resident, if the seller is a non-resident, then the buyer is not required to take a TAN number. A PAN-based return would also be applicable for the non-resident also. And then from 1st April 2027, they are introducing with the centralized 15G, 15H, which is form 121 with the depositories. So the TDS sections or TDS provisions start from section 392 till section 402.
The section 392 contains all the provisions which are related to TDS of the salary. In section 392 also they have consolidated two different sections, section 192 and 192A. 192A was the withdrawal from the EPF. So withdrawal from EPF also included in section 392. So no two different sections, now only one section which is pertaining to a salary. So all the provisions which are applicable to the in section 192, that all provisions has been included in this. There is no much change. Only one change is that they have incorporated section 192A also in this section. See, at any point of view, point of time, if there is any question, you can raise me at that time only. Section 393. Section 393 is the master. Master for non-salary TDS provisions. So all the TDS provisions which is other than salary applicable to both resident and to non-resident are have been incorporated in section 393. So in this section they have divided the whole provision in 4 different tables. Table 1 is a payment to a resident. So whenever the transaction or whenever the payment is paid to a resident, then we have to check whether the provisions of table 1 is applicable or not. Table 2, payment to a non-resident. Table 3, where the residential status is not important. I can give an example like winning. Whenever there is a game, winning is there from any game, online game or anything, then at that time residential status of that person is not required. Same way 194N, when the person is withdrawing the cash, so at that time also checking of the resident status is not required. So table 3 contain all the provisions where the residential status importance is not there. And table 4 contain the exemption detail. See, earlier each and every sections have their separate proviso. For example, 194A, there was a proviso that when the interest is paid to a banking company, TDS is not applicable. In 194, there was a proviso that a dividend is paid to a resident up to 5,000, 10,000 rupees, TDS is not applicable. So all those proviso or exemption, they have incorporated in table 4. Now we will just go through what all table 1s, what all nature of the payments are included in table 1. See, table 1, we can divide it in 4 categories, business and professional, which include commission, contract, professional service, director remuneration, business perquisite. Property or asset related, that is rent, transfer of immovable property. Financial instrumental, that is interest, interest on securities, interest other than securities, dividend distribution, or capital market income, that is mutual fund, REITs. And special categories like insurance policy payment, purchase of good, e-commerce, transaction, virtual digital asset. So all this we have divided in 4 different categories. This is the basic table or rate chart in which I have given the old section number also, threshold limit, standard TDS rate, and TDS rate where no PAN or inoperative PAN. See, if we see the amendment which the government have introduced or which the government is planning to come up, all these amendments are with related to Income Tax Act 2025. So if someone want to understand the amendment, they first have to read the Income Tax Act 2025 and then they have to correlate that amendment with the 2025. Generally, what all all the amendments are in the nature of rectification or in the nature which they have missed in section, which they have missed while bringing the provision from 61 to 25. Like I can give an example, in interest paid to cooperative bank, it was exempted in 1961, but it was not incorporated in 2025 Act. So they have brought the amendment and they have stated that if the interest is paid to cooperative bank also, then also TDS is exempted. So nature table 1 contain all the payment where the payment is paid to a resident. We'll just go through all the sections one by one in a brief. Commissions, there is no particular changes. The rate is same, threshold limit are same. Rental income, for the rental income, there is 2 separate provisions are there. That is 194I and 194IB was there. So now they have given it in 2 separate line item. First is the normal, where the if the person is deductor is other than a specified person,
And second, if the deductor is a specified person. Over here, the specified person they have defined as individual HUF whose turnover is below 1 crore or 50 lakh rupees, or who are not required to do any audit. So that person is considered as a special specified person. Now, as per the, if we compare with 1961, there is no specific changes. However, the only thing is that the threshold limit, which were amended last year only, the threshold limit is 50,000 per month. So in case if anyone is paying a cumulative quarterly payment also, then also TDS would not be applicable if the per month rent is not increasing 50,000 rupees. Now there was a question, okay, sir, if in a quarterly every quarter we are paying 1,20,000 as a rent, TDS would be applicable or not? See, Act simplifies that. Act says that the TDS for a month, if it's more than 50,000 rupees, then only TDS provision is applicable. So though the cumulative amount is 1,20,000 which you are paying, but if we compare or if we check on a monthly wise basis, or if we check for which month the rent is belong, so every month rent is 40,000 rupees only, below 50,000, TDS provision would not be applicable. They have done one important, I would say they have expanded the scope of factory building. Earlier, it was there was many confusion or many litigation was there that factory building, they were considering it as a part of machinery. Since it is belong to plant and machinery, so plant, machinery, factory building, they are considering this as the same thing. And TDS were applying as a 2%. But now in this, they have clarified that factory building or any land appurtenance to building would also include factory building, and the TDS would be at a rate of 10% only, which is for immovable property. Rental income for payer specific nuisance, if a person is a specified person, TDS rate is 2%. Over here also, the monthly rent is 50, if the monthly rent is 50,000 rupees, then only TDS is applicable. One specific condition over here is that the TDS is applicable only at the end of the year, or in between if you are changing the, or if you are ending the rent agreement. If you are changing from one property to the second property, then at the time you have to deduct the TDS, or else only in the year end only. We have seen that many people, they are deducting the TDS on a monthly basis and they are filing this on a monthly basis. It is not required. Even the Act specifically says that for this types of return or for this type of deduction, you have to file only once in a year. Last year, since there was some confusion was there, in between the rate was changed from 5 to 2. So many people have deducted the TDS for April to September at a 5%, and then from October till March 2%. They have submitted the TDS return. The excess TDS that which they have deducted, that credit has not been passed to the landlord. Why? Because all the pen-based return, there one condition is there. Okay, the TDS would the TDS to be passed to the landlord would be specifically at a rate on which it has been deducted. So they were providing the TDS only on a reverse calculation basis. That means if 50,000 rent you have paid, 2%, 1,000 only TDS would be provided. If you have deducted 5,000 also, and if you have shown in the TDS return 26 QC, then also the person will get the credit of 1,000 rupees only. 4,000 will be shown as an extra amount in your 26 QB, and you are allowed to take a refund of that. So this was creating very hindrance with the for the deductor. So from next year, they are coming up that in 2.0, this will not be there. The TDS which you have entered, that full credit will pass to the deductee. So that refund also, now taking a refund, a compliance thing will also be reduced. So government is always focusing of how they can reduce the compliance work of the deductor. Whenever they face or whenever they come to know that this is the difficulty the person is facing, they come up with the solutions. It may take some time, but they come up with the solution. वो बोलते हैं ना, भगवान के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है, तो सेम वे गवर्नमेंट के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है. So they may take some time, but they are coming up with the solutions which help us to reduce the compliance work.
TDS on immovable property, same provisions, no changes. The only thing is the stamp duty value. If the TDS stamp duty value is more, then the TDS would be calculated on stamp duty value also. Joint development agreement, everything same, only section number, table number has been changed. Compulsory acquisition. Compulsory acquisition, they have given that if the property is compulsory acquired under Right to Fair Compensation Transparency Acquisition Act, then the TDS would not be applicable. Why TDS is not applicable? Because that income is exempted. If any government is taking compulsory acquiring any land and it comes and they are providing the compensation under section or under the Act of Right to Fair Compensation Act, then TDS is not required. Mutual fund, threshold is doubled. Digital declaration, which they are come up with from 1st April 2027. Income on TDS from financial vehicle. See, this they have divided into 3 different sections: 194 LBA, LBB, LC. So earlier in all 3 sections, the 3 sections were dealing with both resident also and for non-resident also. But now they have divided separately. For resident, it will consider in table 1, and for non-resident, it will be considered in table 2. So the key structural change is that separate table for both resident and non-resident. So earlier there was a confusion कि सर वो 194 LBA लिखते हैं, तो प्रोविजन सेक्शन नंबर आपने ये लिखा है, पर वो रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट के लिए रेट अलग है, रेसिडेंट के लिए रेट अलग है, तो वो एक कंफ्यूजन हुआ करता था. बट अब वो कंफ्यूजन नहीं है. रेसिडेंट के लिए टेबल 1 के अंदर आ गया, नॉन रेसिडेंट के लिए सेपरेट प्रोविजन विच इज कवर्ड इन टेबल 2. दिस इज ए TDS रेट. Interest on securities, earlier it was section 193. In interest on security, there is not much change, but they have tried to uniform the threshold limit. Earlier for different types of security, different types of threshold was there. 5,000, 10,000 and in some cases 0. So they have tried that all the securities or all the come under one same roof and basic threshold, uniform threshold is given. So for all types of interest which is covered under this section, threshold is 10,000 and TDS would be 10%. TDS on interest non-security. This was section 194A, and section 194A was applicable to both when the interest is paid by bank and when the interest is paid by other than bank. So now for this also they have divided in 2 separate entries. First is for bank and second is for other than bank. So for bank, the threshold limit is 50,000 and 1 lakh rupees. For other than bank, the threshold limit is 10,000 rupees. So whether the person is falling under the bank category, one has to check whether they are governed or whether the company is governed by Banking Regulation Act. This if they are covered by Banking Regulation Act, even though they are cooperative bank, post office, anything, then the TDS threshold limit will be 50,000 for regular and 1 lakh rupees for senior citizen. MCAT or motor accident claim, the interest limit, earlier it was up to 50,000, the interest was exempted. But now the government has seen that once the person is already having a trouble by facing the motor accident claim, and second we are charging the interest TDS also, or we are charging the income, taxable the income also. So they have given the relaxation that any interest from the day the claim is acceptable till the day the order has been passed by the court, वो period का जो भी interest है, वो interest exempt कर दिया है. So if the interest is exempted, TDS provisions are not applicable. So MCAT मोटर एक्सीडेंट के अंदर अगर वो इंटरेस्ट क्लेम से लेके हाई कोर्ट के ऑर्डर या कोर्ट ऑर्डर तक का जो इंटरेस्ट रहता है, वो इंटरेस्ट के लिए TDS एप्लीकेबल नहीं है. However, if the interest is paid after that period, that after the order has been passed till the amount, actual amount has been disbursed, then TDS provision would be applicable. No, that the basic exemption limit, whatever is there. Till the date of order it is exempted. After that, whatever interest has been accrued on that portion only, and there also वो जो exemption limit है, वो exemption limit के बाद.
I'm saying below threshold doesn't mean that the income is exempted below threshold. After that, if the interest is paid by 9,000, 8,000, TDS applicable नहीं है because it is below threshold. But that income is taxable. See, many persons believe that कि जिस प्रोविजन के ऊपर TDS applicable नहीं है वो इनकम हमारा एग्जेम्प्टेड इनकम है. ये एक जनरल ना फिलोसफी बैठा हुआ है दिमाग में कि जिसके ऊपर भी TDS नहीं डिडक्ट हो रहा है मतलब वो इनकम एग्जेम्प्टेड है. TDS on contractor 194C, earlier section was 194C. In this, one very welcome amendment was there that manpower has been exclusively defined under the provision of work contract. So now, if any person is supplying a manpower, then the TDS is deductible under section 194C, or I will say 2% or 1%. See, why there was confusion or why there was litigation? Because when the company is supplying a manpower, then the department was checking whether the person they have supplied is a professional or not. If the person is a professional, then they were deducting or they were asking the deductor to deduct the TDS at a rate of 10%, 194J. If the person is non-professional, then they were saying that it's come under contract. तो वो एक ambiguity था, वो एक litigation बहुत टाइम से चले आ रहा था, उसको clear off कर दिया. Now it is clear कि अगर कोई भी कंपनी मैन पावर सप्लाई करती है, whether it is a professional or whether it is a non-professional, it would come under section 194C only. TDS रेट में कोई चेंज नहीं है. TDS on certain payment of individual and HOF, ये जो सेक्शन है 194M का जो सेक्शन था, सेम सेक्शन इसमें रिपीट किया हुआ है. द ओनली कंडीशन इसमें वो स्पेसिफाइड कंडीशन का स्पेसिफाइड पर्सन है उसी के लिए एप्लीकेबल है. एंड कब एप्लीकेबल होगा? जब आपका इनकम और व्हेन यू आर पेइंग 50 लाख रुपीज और मोर. जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा कोई ऑडिट नहीं हो रहा है, मैं अपना एक घर बना रहा हूँ. व्हेन आई एम बिल्डिंग माई हाउस, मैं कॉन्ट्रैक्टर को 75 लैक्स दे रहा हूँ. ऑन दैट 75 लाख TDS वुड बी एप्लीकेबल. अगर वही मैं कॉन्ट्रैक्टर को 30 लाख 40 लैक्स देता था तो TDS प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होता था. अब 40 लैक्स दे रहा हूँ और TDS एप्लीकेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं है. His income is taxable, but only thing the provision is not there on which TDS would be applicable. ऐसे ही एक मुझे ना सुबह केस आया था, सर वी आर पेइंग द पेंशन टू द दिस फैमिली पेंशन वी आर पेइंग, so whether family pension is exempted or not. On family pension, TDS provisions would not be applicable because if the company is paying a family pension, employer-employee relationship नहीं है, तो employer-employee relationship नहीं तो 392 applicable नहीं होएगा. 392 के अलावा और कोई provisions के अंदर family pension define नहीं किया हुआ है. So TDS provisions के हिसाब से वो TDS applicable नहीं है, but the income is taxable in the hand of the person who is receiving it. Fees for professional and technical services. So the provisions, rates, everything is same. The only confusion many people face that कि ये FTS जो 2% है और FPS जो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज है उसको कैसे डिफाइन किया जाए. कौन सी चीज़ को अपन टेक्निकल सर्विस में ले, फीस ऑफ टेक्निकल सर्विस में ले, और कौन सी चीज़ें अपन फीस ऑफ प्रोफेशनल फीस में ले. सो एक्ट के अंदर किधर भी कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है. हाउएवर दैट इज अ सेटल लॉ कि अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते समय प्रोफेशनल डिग्री का यूसेज आए तो वो फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज है. अगर प्रोफेशनल सर्विसेज का यूसेज नहीं आता है तो वो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है. ये एक बहुत से केस लॉस के अंदर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया हुआ है. एक तरह से उन्होंने मैन पावर के अंदर एम्बिग्यूटी निकाल दी, बट इन प्रोफेशनल के अंदर फीस फॉर प्रोफेशनल के अंदर एक एम्बिग्यूटी ऐड कर दी. हाउ एम्बिग्यूटी? बिकॉज अभी तक एक स्टैंडर्ड क्लॉज था एडवर्टाइजिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बिकॉज एडवर्टाइजिंग वर्ड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क के अंदर डिफाइन किया हुआ है. बट नाउ इवन इन प्रोफेशनल सर्विसेज जो डेफिनेशन है उसके अंदर भी एडवर्टाइज वर्ड यूज कर लिया है. So whenever you are paying any advertisement fees, so now we have to check whether it is in the nature of professional or not. So professional मतलब अगर किसी फिल्म वाले को दे रहे हो या किसी और किसी इंजीनियर या डिजाइनिंग सब के लिए दे रहे हो, भले ही वो एडवर्टाइजमेंट डिजाइन कर रहा है, तो इन केस के अंदर वो 10% आ सकता है.
सो अब डायरेक्टली अगर एडवर्टाइजमेंट वर्ड से वी कैन नॉट क्लासीफाई कि वो 194C हो गया. तो ये एक एम्बिग्यूटी इधर इन्होंने ढाल के रखी हुई है कि एडवर्टाइजिंग को प्रोफेशनल सर्विस में भी इंक्लूड करके रखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इंक्लूड करके रखा हुआ है, दोनों के डेफिनेशन में इंक्लूड किया हुआ है. टीडीएस ऑन डिविडेंड पर से डिविडेंड के अंदर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दिया हुआ है. डिविडेंड आपको ₹1 भी है तो भी टैक्सेबल होता है. हाउएवर टेबल 4 के अंदर उन्होंने एक एग्जम्पशन लाइन डाल के रखी हुई है कि इफ द पर्सन इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड इफ द कंपनी इज पेइंग नॉन कैश पेमेंट देन टिल 10,000 रुपीज द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस. सो एक्ट के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देके रखा हुआ है. अगर आप टेबल देखोगे टेबल में हमेशा नील रहेगा, बट इनडायरेक्टली थ्रेशोल्ड लिमिट ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए है. एचयूएफ के लिए भी ये थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल. इफ द इंडिविजुअल को कंपनी डिविडेंड पे करता है तो 10,000 तक एग्जम्प्टेड है, बिलो थ्रेशोल्ड तक एग्जम्प्टेड है. 10,000 के ऊपर हुआ तो फुल के ऊपर टैक्सेबल आएगा. और इफ द कंपनी इज पेइंग द डिविडेंड टू नॉन इंडिविजुअल, एचयूएफ हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, ट्रस्ट हो गया, तो डायरेक्टली 10% से टीडीएस एप्लीकेबल होगा. Life insurance proceed. If the company insurance company is paying the payment and if that proceeds is from the life insurance policy which is not defined or which is not exempted under section 10(10)(d, then that income is a taxable income. और वो taxable income रहेगा then the TDS would be deductible. So ये एक पहले लोगों को I would say before this section 194(d)(a) का जो सेक्शन था उससे पहले आप किसी को भी बोलते थे कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड मिला है तो डायरेक्टली बोलता था सर ये तो एग्जम्प्टेड है, कोई सोचना ही नहीं है दूसरी बात, एग्जम्प्टेड है. बट नाउ इफ द पेमेंट और इफ द इनकम पोर्शन इज मोर देन 1 लाख रुपीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खुद ही टीडीएस डिडक्ट कर रही है तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर टैक्स पे हो रहा है. टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स 194Q, देयर इज नो मच चेंज. थ्रेशोल्ड लिमिट वो 50 लाख है. इसके अंदर अगर आपका परचेज 50 लाख से ऊपर है तो जितना अमाउंट 50 लाख के ऊपर जा रहा है उसी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना है. अनलाइक अदर जहां पर ये लिखा हुआ है कि जैसी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है फुल अमाउंट के ऊपर टीडीएस कलेक्ट करना है, इसमें ऐसा नहीं है. इसमें ये मेंशन किया हुआ है अगर थ्रेशोल्ड के ऊपर गया तो जितना ऊपर गया है उसी के ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा. सेकेंड, आप टीडीएस डिडक्ट करने वाले हो या नहीं हो वो डिपेंड करेगा आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर. अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर है तो ही आपके लिए ये प्रोविजन एप्लीकेबल है. नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और नए फर्स्ट ईयर के अंदर मैंने 100 करोड़ पास कर 100 करोड़ का परचेज किया है, टीडीएस प्रोविजन वुड नॉट बी एप्लीकेबल. वो लास्ट ईयर का दिखता है. पैन नॉट अवेलेबिलिटी में इफ द पैन इज इनऑपरेटिव और नॉट देयर 5% रहेगा उसमें. स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन जो 194P था उसको इन्होंने अलग से डिफाइन करके रखा हुआ है. स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन इज अ पर्सन हु इज अबव 75 ईयर्स ऑफ एज और उसकी सिर्फ 2 तरह की इनकम है. एक, उसको इंटरेस्ट इनकम मिल रहा है वो भी स्पेसिफाइड बैंक से. सेकंड, उसको पेंशन भी मिल रहा है वही बैंक से मिल रहा है. तो इसके अलावा उसकी कोई इनकम नहीं रहनी चाहिए तो ही आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हो. इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपने डिक्लेरेशन दिया कि वी आर फॉलोइंग इन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कैटेगरी तो बैंक को कंपलसरी टीडीएस जो है वो 194A के अंदर नहीं, वो 194P के अंदर डिडक्ट करेगा. और जब वो 194P में डिडक्ट करता है टीडीएस तो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. तो जो भी सुपर सीनियर सिटीजन है जो अबव 75 है और उनकी सिर्फ 2 तरह की इनकम है तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप सिर्फ एक डिक्लेरेशन दीजिए 12A 12B के अंदर और वो डिक्लेरेशन के बेसिस के ऊपर बैंक जो है वो आपका टीडीएस 194P में कट करेगा. 194P में टीडीएस डिडक्ट होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है आपको आपका आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है. तो एक बहुत वेलकम स्टेप दिया था बट मैनी पीपल आर नॉट अवेयर. ये एक बिकॉज टिल नाउ आई एम डूइंग अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 बैंक्स का टीडीएस आई एम डूइंग इट. एक भी प्रोविजन नहीं, एक भी सेक्शन लाइन आइटम नहीं जिसमें हम लोग ने टीडीएस 194P में डिडक्ट किया है. बिकॉज ऑफ नॉट अवेयरनेस दे आर नॉट टेकिंग द बेनिफिट बट दिस इज अ वेरी वेरी गुड step for the senior citizen. TDS on perquisites and benefit, threshold limit 20,000, TDS rate 10%.
There is no specific change in this. E-commerce platform, e-commerce, the company is required to deduct the TDS at a rate of 0.1% of the gross sale. इसमें भी कोई भी थ्रेशोल्ड बेनिफिट नहीं दिया हुआ है, बट एग्जाम्पशन के अंदर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ को एग्जाम्पशन देके रखा हुआ है कि इफ द पर्सन हैज फर्निश्ड पैन और आधार एंड इफ द टर्नओवर इज बिलो 5 लाख रुपीज देन टीडीएस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. टीडीएस ऑन वर्चुअल डिजिटल एसेट. वर्चुअल डिजिटल एसेट मतलब क्रिप्टो करेंसी. आज से 5 साल पहले क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा हुआ उड़ा था कि क्रिप्टो करेंसी में, और मैनी पीपल आर ट्रेडिंग इन दैट, बट देयर वाज नो प्रोविजन कि गवर्नमेंट उसको अपने इसमें लेके आए, परव्यू में लेके आए, किसने कितना टीडीएस काटा है या किसने कितना इनकम किया है. सो दे हैव इंट्रोड्यूस दिस सेक्शन 194S. तो 194S इज टू क्लेम दैट कि जो भी पर्सन इज डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसी that should come to their record and on that the income is paid properly. इसमें भी वो exemption दे के रखा हुआ है. If individual and HUF is there, then the 50,000 threshold limit is there, and for others the threshold limit is 10,000 rupees. For individual and HUF, the person is not required to take TAN number. वो exemption इनके लिए भी दे के रखा हुआ है. अगर individual और HUF अपना क्रिप्टो करेंसी सेल करता है तो उसको TDS जो डिडक्ट करना है वो पैन बेस्ड रिटर्न के अंदर फाइल कर सकता है. पहले था 26 QF, अब हो गया 141. अभी तक अपन ने जो भी प्रोविजंस देखा वो सब प्रोविजन रिलेटेड थे रेसिडेंट के लिए. नाउ वी विल गो थ्रू दी प्रोविजंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू अ नॉन रेसिडेंट. इन नॉन रेसिडेंट आई हैव डिवाइडेड इट 4 डिफरेंट पार्ट: स्पोर्ट्स इनकम, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स एंड सिक्योरिटीज. दिस इज द टेबल. देयर आर 17 एंट्रीज. See in the column, last column, 4 to 5 entries are there in which they have exempted them from supplying the PAN number. So अगर उनका PAN number भी नहीं रहा, then also the TDS would be at a lower rate only. (194) LC. I am just skipping this section. 194 LBA, LBA, LBB, LBC. Sub provisions same provisions है. There is no specific change. 5%, 10% and rate in force. This is the important section 195. So section 195 which is the residual provision कि अगर आप कोई भी नॉन रेसिडेंट को कोई भी इनकम पे करते हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है. अब इन दिस सेक्शन दे हैव नॉट स्पेसिफाइड द रेट. रेट क्या लिखा हुआ है? रेट इन फोर्स. रेट इन फोर्स मीन्स वो नेचर ऑफ इनकम के हिसाब से रेट डिफाइंड की जाएगी. डिविडेंड इनकम है तो 115A के हिसाब से 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5%, और एनी अदर इनकम है तो 30% if the residual or if the person receiving the income is a non-corporate or non-foreign company, and if he is a foreign company then TDS rate would be 35%. This is the basic rate. इसके ऊपर सरचार्ज एजुकेशन सेस एप्लीकेबल रहेगा. आपको सरचार्ज इफ द इनकम इज मोर देन 50 लाख और 1 करोड़, पर एजुकेशन सेस आपको कंपल्सरी लगाना है. अगर आपने एजुकेशन सेस के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, एजुकेशन सेस नहीं लगाया, तो यू मे रिसीव शॉर्ट डिडक्शन नोटिस. So for non-resident, they have given this very welcome relaxation that if the person is purchasing a property from a non-resident, then the person is not required to take a TAN number. पैन बेस्ड रिटर्न के अंदर ही उसको अलाउ किया जाएगा. और वो जो ये जो प्रोविजंस है और ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 26 से. पेमेंट टेबल 3, पेमेंट to any person where residential status is not required to check. So in this we have divided in 3 different parts. First is gambling or gaming or gambling, second cash transaction, cash withdrawal, third is the partnership income. So winning, they have specifically mentioned 30% directly 30%. Only for online games, the TDS, there is no specific threshold limit is there, but every year end, the company is required to check whether the person has earned the income or not, and on that earning, TDS is required to be deducted. For all other lottery, crossword or house race, 10,000 single transaction, not on a cumulative basis.
cash withdrawal. In this, there is one very important amendment is there, which was not there in 1961 Act. Why I will say very important? Because this non-filer burden has been removed. अब कोई बोलेगा सर वो तो पिछले साल ही निकल गया था, नॉन फाइलर का पिछले साल ही निकल गया था, तो इसके अंदर कैसे फिर से आया? से जो नॉन फाइलर जो थे वो दो कैटेगरी डिफाइन करके रखी हुई थी, लास्ट टू लास्ट दो कैटेगरी थी. एक था सेक्शन 206 AB एंड सेकंड इन द एक्ट इन द सेक्शन इटसेल्फ 194N के अंदर एक नॉन फाइलिंग डिफाइन किया हुआ है. 206 AB जो है वो सबके लिए एप्लीकेबल था, सारे प्रोविजंस के लिए, बट जो 194N के अंदर नॉन फाइलर डिफाइन किया हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 194N के लिए एप्लीकेबल था. अब इसके अंदर 206 AB के अंदर फिर भी एक लिमिट देके रखी हुई थी कि अगर आपका TDS और इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर है और आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो 206 AB एप्लीकेबल होता है. बट इधर जो नॉन फाइलर है उसके लिए कोई लिमिट नहीं थी. तो अगर कोई स्मॉल पर्सन लाइक कोई फार्मर है, अब उसका इनकम नहीं है तो उन्होंने रिटर्न नहीं फाइल किया, तो दैट पर्सन वुड ऑल्सो कंसिडर एज अ नॉन फाइलर फॉर सेक्शन 194N, और ये साल तक एप्लीकेबल है. फ्रॉम 1 अप्रैल दिस हैज बीन रिमूव्ड. अब वी कैन से कि वो पर्पसली रिमूव हुआ है या एररनेसली रिमूव हुआ है, एनीथिंग, बट इट इज अ वेरी वेलकम कि उन्होंने ये रिमूव कर दिया है. इस प्रोविजंस की वजह से क्या होता था, इफ अ नॉन फाइलर इज विड्रॉइंग द कैश मोर देन 20 लाख रुपीज देन ऑल्सो दिस TDS प्रोविजन वॉज एप्लीकेबल. तो अगर कोई नॉन फाइलर 20 लाख से 1 करोड़ तक कैश विड्रॉ करता था तो 2% TDS एप्लीकेबल होता था, और 1 करोड़ के ऊपर करता था तो 5% TDS प्रोविजन एप्लीकेबल होता था. बट नाउ दिस इज रिमूव्ड. तो ये अच्छा है कि अब सबके लिए 1 करोड़ इज द लिमिट. ओनली फॉर कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी द लिमिट इज 3 करोड़ रुपीज. बाकी सबके लिए सिंपल 1 करोड़ का लिमिट किया हुआ है. सो इफ द पर्सन इज विड्रॉइंग द कैश मोर देन 1 करोड़ रुपीज, तो जो 1 करोड़ के ऊपर है उसी के ऊपर TDS एप्लीकेबल होगा, कंप्लीट अमाउंट के ऊपर नहीं होगा. इफ आई हैव विड्रॉन 1 करोड़ 10 लाख रुपीज तो मेरे 10 लाख रुपीज के ऊपर ही TDS एप्लीकेबल होगा, 1 करोड़ के ऊपर नहीं होगा. सो कैश ऑन विड्रॉल, नॉन फाइलर रिलीफ, नेशनल सेविंग स्कीम थ्रेशोल्ड. सी इसमें पर से कोई सेक्शन में अमेंडमेंट नहीं है, हाउएवर एक छोटा सा वर्ड का चेंज होकर दिया है, वो इसमें भी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन में वो वर्ड यूज किया हुआ है जो है एक्सीड. इन सम प्रोविजंस जहां पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट था वहां पर ये था कि एज सुन एज इट टचेस द थ्रेशोल्ड लिमिट देन ऑल्सो TDS प्रोविजंस वर एप्लीकेबल. बट नाउ फॉलोइंग ऑफ द यूनिफॉर्मिटी जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड होएगा तो ही TDS एप्लीकेबल होगा. फॉर एग्जांपल जैसे इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट है 2500, तो अगर कोई कंपनी 2500 पे कर रहा है तो TDS एप्लीकेबल नहीं है. जैसे 2500 रुपीज 1 रुपीज पे करता है तो ही एप्लीकेबल होएगा. तो ये एक्सीड वर्ड जो है ये सारे सेक्शंस के अंदर चेंज कर दिया है. पार्टनर रेम्यूनरेशन 194T. If the firm is paying to any partner in the form of remuneration, interest, commission, any word, TDS would be applicable at a rate of 10%. हाँ, पार्टनर्स कैपिटल विड्रॉल के ऊपर TDS एप्लीकेबल नहीं होता. So one has to check whether it is a withdrawal in nature or whether it is a remuneration or any other types of income. So partners के ऊपर TDS provision, if the firm is paying more than 20,000 rupees, then the TDS would be applicable at a rate of 10%. इसमें पर से कोई चेंज नहीं है, बट दिस इज अ न्यू सेक्शन विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स. तो ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आई ऑलवेज सजेस्ट कि जैसे ये मार्च कंप्लीट होएगा अप्रैल के अंदर एक लमसम TDS अमाउंट पे कर दीजिए, सो डेट यू कैन यूटिलाइज. कभी भी आपको कुछ चेंज करना हो पार्टनर रेम्यूनरेशन तो आप उसके ऊपर TDS डिडक्ट करके अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हो. सी टिल 25 और 26 इट वॉज क्लियर कि एक चालान 2 साल के लिए यूज कर सकते हैं. बट अब जब न्यू सेक्शन आया है द डिपार्टमेंट इज वेरी साइलेंट ऑन इट. बट मेरी डे बिफोर yesterday only I have a discussion on this topic only. So they were saying कि sir we were thinking that we will discontinue it. But my next question was there कि sir if you are discontinuing it तो सर आपने किसी को इन्फॉर्म किया है
राइटिंग में अभी तक कुछ लिखे आए, दे हैव सेड नो, बिकॉज ऑफ दैट सिंस दे हैव नॉट कम्युनिकेटेड दे विल नॉट डिसकंटिन्यू दिस। सो आपका ये जो चालान है वो नेक्स्ट ईयर भी यूटिलाइज होएगा। अभी तक प्रोविजंस उन्होंने ये रखा है कि ये चालान को नेक्स्ट ईयर यूटिलाइज करेंगे। यस, दे आर फेसिंग सम टेक्निकल इश्यूज बिकॉज पहला वाला चालान जो था वो 1961 के अंदर पे किया हुआ था, अब जो चालान रहेगा वो 2025 के अंदर पे किया हुआ है। पहले वाले चालान के अंदर टीडीएस सेक्शन नंबर रिक्वायर्ड था, अब वाले चालान के अंदर टीडीएस सेक्शन नंबर कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। तो वो एक थोड़ा टेक्निकल इश्यूज दे आर फेसिंग इट, बट यस दे हैव एग्रीड इनफॉर्मली कि दे आर गोइंग कंटिन्यूइंग इट विद द 2 years यूटिलाइजेशन। Yeah, +1 -1 2 years, or I will say 3 years. +1 -1. For this threshold, no, nothing. अगर आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है तो आप लोअर डायरेक्शन की सी 5-6 lakhs भी रहा तो भी वो इनकम टैक्सेबल इनकम है, चाहे 20,000 रहा तो भी टैक्सेबल इनकम है, और फर्म के को वैसे भी पे करना है। हाँ, अगर फिर भी किसी पार्टनर को लगता है कि मेरे टीडीएस ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है, दे कैन अप्लाई फॉर एलडीसी। और अब तो वो भी है कि न्यू एलडीसी के अंदर दे आर कम अप विद दी ऑटोमेटेड रूल्स। तो ऑटोमेटेड रूल मतलब सिस्टम जनरेटेड एलडीसी जनरेट होएगा। जैसे आप अप्लाई करोगे टीडीएस रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होएगा, आपका एक्सपेक्ट आपने जो प्रोविजनल इनकम डाला है, प्रोविजनल टैक्स डाला है, उसके हिसाब से वो लोग टीडीएस कैलकुलेट करेंगे और विद इन 1 or 2 days वो टीडीएस एलडीसी सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएगा। अब नॉन डिडक्शन they have I have categorized in 4 different part. First, what all the benefit are available to small taxpayer. Second, what all the benefit available to financial sector. Third, business and contractor. And fourth is nil and TDS self declaration, that is form 15G 15H. So small taxpayer के लिए first is small dividend, e-commerce के लिए देके रखा हुआ है बेनिफिट, VDA के लिए देके रखा हुआ है बेनिफिट। सो ऑल दिस बेनिफिट हैज बीन प्रोवाइडेड टू अ स्मॉल टैक्स पेयर। तो ये जो भी बेनिफिट था वो पहले सेक्शन के अंदर प्रोविजो के नाम से देके रखा हुआ था, अब उसका अलग सेपरेट टेबल बना दिया है। सेम वे इनकम फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, तो इफ यू आर पेइंग द इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटी लाइक बैंक हो गया, LIC हो गया, UTI हो गया, तो उसके ऊपर TDS एप्लीकेबल नहीं होएगा। MCAT इसके ऊपर TDS एप्लीकेबल नहीं। तो ये सारे प्रोविजंस जो है वो टेबल 4 के अंदर सेपरेटली डिस्क्लोज कर दिए। बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टर हो गया, रिट्स हो गया, कैपिटल गेन हो गया, कंपलसरी एक्विजिशन हो गया, या कैश विड्रॉल फॉर वाइट लेबल, तो ये सारे जो भी एग्जाम्पशंस है वो सब टेबल 4 के अंदर अलग अलग टेबल के हिसाब से देके रखा हुआ है। अभी तक अपन ने देखा TDS की प्रोविजंस। नाउ वी आर गोइंग टू गो थ्रू विद दी TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो इन दिस कौन कौन से ट्रांजेक्शन कवर्स होते हैं? जनरली अल्कोहल, सेल ऑफ अल्कोहल, क्रैप, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मोटर व्हीकल, लीज एंड रिसोर्सेज, ओवरसी रेमिटेंस। तो इसके अंदर मेजर चेंज लेके आया गवर्नमेंट ने। व्हाट दे हैव रैशनलाइज ऑल द TCS रेट। जहां पर TCS रेट अलग अलग थे 1%, 5%, 2%, उसको एक रैशनलाइज कर दिया 2%। ओनली एंड ओनली फॉर मोटर व्हीकल द TCS रेट इज 1%, रेस्ट ऑल द TCS रेट वुड बी 2% ओनली। जहां पर 5% था उसको भी 2% लेके आ गए, जहां पर 1% था उसको भी 2% लेके आ गए। सेकेंड फॉरेन रेमिटेंस, इसमें भी बहुत बड़ा वेलकम स्टेप से चेंज है। अर्लियर अगर आप TCS फॉरेन टूर के लिए लेते हो तो टिल 10 लाख द TCS रेट वॉज 5%, अबाउट 10 लाख द TCS रेट वॉज 20%। अब एक सिंपल लेके आ गया सबके लिए 2%। आप फॉरेन ओवरसीज टूर पैकेज का परचेज कर रहे हो तो TCS रहेगा 2% डायरेक्टली। अब यही अगर मैं फॉरेन रेमिटेंस एजुकेशन और मेडिकल के लिए पे करता हूं तो टिल 10 लाख नो TCS, above 10 lakh earlier the TCS rate was 5%, but now it would be 2%. और LRS for other provisions इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें पहले भी above 10 lakh 20% है और अभी भी above 10 lakh 20% है। See, government want to discontinue और discourage this LRS other purpose। हाँ, अगर आपका एजुकेशन के लिए और अगर आपका मेडिकल के लिए है देन दे आर अलाउइंग इट, और उसके लिए उन्होंने 2% रख के रखा हुआ है। बट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो अदर देन फॉर मेडिकल एंड एजुकेशन तो उन्होंने अबाउट 10 लाख 20% डायरेक्टली TCS रेट करके रखा हुआ है।
395, lower deduction certificate and automation. From first, not from 1st April, this finance bill, they have introduced that for the lower deduction, they may come up this only for small taxpayer, an automated procedure where the, अभी time है, it will take time. लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट ऑटोमाइजेशन ये इंट्रोड्यूस किया है फॉर स्मॉल टैक्स पेयर. बड़े टैक्स पेयर के लिए अभी भी वही है कि एओ के पास जाएगा, एओ चेक करेगा, फिर अप्रूव करेगा. बट फॉर स्मॉल टैक्स पेयर ऑटोमेटेड सोल्यूशन रहेगा. आपने अप्लाई किया, अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर के डेफिनेशन में बैठते हो तो ऑटोमेटिकली एलडीसी अप्रूव हो जाएगा और ऑटोमेटिकली डिडक्टर को ईमेल चला जाएगा कि ये एलडीसी रेट है. टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, टीडीएस जिस मंथ जिस इनकम का है और वो इनकम अगर इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल है तो उसी पीरियड का ऊपर टीडीएस का आपको क्रेडिट मिलेगा. अगर आपका आगे है, मतलब आपको एक 5 या 6 ईयर का इनकम एक साथ मिल गया और टीडीएस भी एक साथ डिडक्ट कर दिया, देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट इनकम. और अगर आपका टीडीएस पहले डिडक्ट हो चुका है तो भी आप, या बाद में डिडक्ट हुआ है, तो फॉर्म 71 से आप क्रेडिट ले सकते हो. तो ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन फाइनेंशियल ईयर टू सेकंड फाइनेंशियल ईयर, इट हैज बीन देयर. For TCS, yes. No, for other purpose, for TCS, only for this alcohol, all the sale is there. For this provisions only TCS would be applicable. LRS के लिए अभी तक उन्होंने डिफाइन नहीं किया इसको. Yes, for. Yeah. Preponement is also allowed. TDS का जो क्रेडिट मैकेनिज्म का प्रीपोनमेंट है वो भी अलाउड है. उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्म था. पहले जो फॉर्म 71 था वो प्रीपोनमेंट के लिए था. अगर आप पोस्टपोन करते हो तो पहले से टीडीएस रिटर्न अपना आईटीआर के अंदर देख रखा हुआ है, पर प्रीपोनमेंट के लिए उन्होंने फॉर्म 71 लेके आए थे. 397 allows that make compulsory that whenever the TDS transactions are there, then 10 is required. However, for specific transactions, this exemption has been provided, like I would say immovable sale property or rent from specified individual, contract charges from specified individual और VDA from a specified individual. So अगर ये 3-4 कैटेगरी है उसके लिए पैन कम इज नॉट अ कंपलसरी. बाकी सारे ट्रांजेक्शन के लिए 10 इज कंपलसरी. तो उन सब के लिए उन्होंने पैन बेस्ड रिटर्न लेके आके रखा हुआ है. 398 जो पहले 201 सेक्शन था उसी का रेप्लिका है. द पर्सन वुड बी डीम्ड एज अ डिफॉल्ट अगर उसने टीडीएस प्रॉपर्ली डिडक्ट नहीं करके रखा हुआ है. देयर इज नो रिलीफ. मैंडेटरी इंटरेस्ट 1% है एंड 1.5%. इफ द पर्सन इज नॉट लायबल तो the department can charge on their assets and penalty protection is no penalty protection is provided. अब ये एक important change आ रहा है that the correction statement जो है वो पहले तो 1 अप्रैल 25 से 6 ईयर कर दिया. अगर आप अपन एक साल पहले देखें तो टीडीएस रिटर्न कभी भी आप रिवाइज कर सकते थे. आप 7-8 का भी रिवाइज कर सकते थे, 8-9 का भी रिवाइज कर सकते थे. तो देयर वाज नो टाइम लिमिट. फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 वो टाइम लिमिट इंट्रोड्यूस किया. तो पहली बार जब इंट्रोड्यूस किया तो इंट्रोड्यूस किया 6 ईयर्स. अब नेक्स्ट ईयर से मतलब एक साल के अंदर ही वो टाइम लिमिट जो है वो 6 साल से घटा के 2 साल कर दिया है. सो नाउ द टीडीएस रिवीजन अगर आपको करना है तो सिर्फ 2 साल ही अलाउड रहेगा. सो इट इज इन लाइन विद द रेक्टिफिकेशन इनकम रिटर्न जो अपन 2 साल के लिए रिटर्न रेक्टिफाई कर सकते हैं. सेम वे आप अपना टीडीएस रिटर्न भी जो है वो 2 साल तक ही रिवाइज कर सकते हो. उसके बाद अगर आपको कुछ करना है तो आपको सिर्फ एक ही सिस्टम अलाउड किया हुआ है, वो है डिमांड मैनेजमेंट सिस्टम. दैट मीन्स आपका कोई भी डिफॉल्ट है, आपको चुपचाप गवर्नमेंट को उतना पेमेंट करना है. कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई किसी को ट्रांसफर नहीं होगा. आपने भले ही गलती करके रखी हुई है पर आपने टाइमली रिवाइज नहीं किया तो गलती के ऊपर आपको पेनल्टी पे करनी है. इट इज़ वन टाइप ऑफ एन पेनल्टी ओनली. जैसे किसी का अगर 16-17 का टीडीएस डिडक्ट करके रखा हुआ है और वो पैन एरर हो चुका था. डिफॉल्ट इज ऑफ शॉर्ट डिडक्शन बिकॉज ऑफ पैन एरर, बट अब आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते.
रिवाइज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ चालान पे करना है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 201। उसके अलावा जो भी आपका एडिशनल इंटरेस्ट है वो सब पे करके आपको सिर्फ डिमांड मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो डिमांड को आप हटा सकते हो। ये भी डिमांड मैनेजमेंट सिस्टम 1 साल पहले अप्लाई हुआ है, उससे पहले देयर वाज नो प्रोविजन ओनली। अगर गवर्नमेंट ने तो अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से बंद किया हुआ था, बट टिल 9 और 10 मंथ्स देयर वाज नो सॉल्यूशन। जिसका पुराना डिमांड है वो खड़ा है, वो खड़े रहने दो। एट दैट टाइम दे हैव अलाउड एओ कि आप एओ के पास जाइए, लेटर दीजिए, चलान का कॉपी दीजिए और एओ उसको टैग कर रहा था। बट नाउ फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स दिस system has been provided to director also. Now director himself can tag the demand. इसमें करंटली एक बेनिफिट है कि आप कोई भी पुराना चालान पे किया हुआ है वो भी आपके डिमांड के सामने टैग कर सकते हो। अगर आपके रिटर्न के अंदर और आपके इसमें दिख रहा है अवेलेबल बैलेंस कोई भी चालान के अंदर, तो वो चालान आप उसके सामने टैग कर सकते हो। अभी कोई लिमिट नहीं है, अभी कोई उसके ऊपर होल्ड नहीं रखा हुआ है। नियर फ्यूचर दे में कम अप, पर अभी कोई ये नहीं है, रूल नहीं है। चालान अवेलेबल है, आप डिमांड के सामने टैग कर दीजिए और आपका डिमांड क्लोज कर जाएगा। हाँ, बट सामने वालों को टीडीएस क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे अगर किसी का शॉर्ट डिडक्शन है तो सामने वालों को टीडीएस क्रेडिट नहीं मिलेगा, शॉर्ट पेमेंट है तो भी सामने वालों को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। नहीं, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक केस है वी कैन डेफिनेटली टेक विद द डिपार्टमेंट, बिकॉज टिल 31 मार्च तक आपका लाइक ना, इफ यू फाइल्ड जस्ट प्रोवाइड मी द डिटेल, आई विल मेक श्योर कि वो प्रोसेस हो जाएगा। सी 1213 is a major I will say advancement or major change was introduced from 1213 onwards. What major change was there? Before 1213 there was no traces system, TDS नहीं था, वो NSDL सिस्टम था। तो NSDL रिटर्न प्रोसेस करता था। तो टिल 1213 दे वर नॉट अलाउइंग के इसके लिए वो 1213 का एक ब्रेक ऑफ पॉइंट लेकर रखा हुआ है। डिपार्टमेंट ने वो क्यों अलाउ किया ब्रेकअप पॉइंट लेकर रखा? बिकॉज फ्रॉम 7-8 till 10-11 many of the clients or many of the directors have the available balance in their return or in their portal। और उसका रीजन ये नहीं है कि उन्होंने एक्सेस पे किया है, उसका रीजन था डिपार्टमेंट ने 7-8 के टाइम पैन वॉज नॉट कंपल्सरी, 8-9 के टाइम दे हैव कम अप दैट 80% का पैन रहना चाहिए, और 9-10 के बाद से उन्होंने 20% का प्रोविजन लेके आए थे। पर जब 8-9 के टाइम अब पैन एकदम से 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर ही कोई भी अपने सारे इसके पैन नंबर नहीं ले सकता था। तो दे वर कलेक्टिंग द पैन नंबर, बट वाइल फाइलिंग वो एक रिस्ट्रिक्शन था कि आपके अगर 100 एंट्रीज है और अगर आपके 40 पैन आपके पास अवेलेबल है तो आप सिर्फ 40 ही कर पा सकते, 100 नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज 80% कंपल्सरी रूल वॉज देयर। तो उसके वजह से many of them have filed the return improperly or they have not filed the full return, और वो रीजन की वजह से चालान अवेलेबल बैलेंस थे। तो वो एक लॉक करने के लिए 11-12 को एक पीरियड रखा हुआ है कि 11-12 10-11 या 11-12 से पहले जितने भी चालान थे उसको आप डीएमएस या किसी के सामने यूटिलाइज नहीं कर सकते, अनलेस आपको अगर करना है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ये आपने एक्स्ट्रा पे करके रखा हुआ है, और वो एओ से आपको लिखवा के लेना पड़ेगा यस दिस इज, वो एक तरह का स्क्रूटनी पूरा प्रोसेस करवाना पड़ेगा, तब जाके वो चालान को आपको अवेलेबल रहेगा। यस See, government has already processed that return at 6 years back or 10 years back. The only thing is that आपने वो डिमांड देखा नहीं है,
आपको मालूम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो डिमांड जनरेटेड नहीं था। हाँ, अगर कोई डिमांड नया जनरेट होता है वो डिमांड नहीं होएगा, उसके लिए वैलिडिटी है, पर वो डिमांड पहले से जनरेटेड है, आपने नहीं देखा उसको, आपको मालूम नहीं था। वो वही ना, डिपार्टमेंट ने रिकवरी एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेएबल नहीं है। अगर आपने कभी बैंक से लोन लेके रखा हुआ है और आपने इंटरेस्ट पे या ना पेमेंट नहीं किया, 5 साल तक बैंक ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका ना वो लोन वे ऑफ हो गया, आपको पे करना ही करना है, बिकॉज वो डिमांड पहले से ही जनरेटेड है, वो डिमांड अभी जनरेट नहीं किया है। वैलिडिटी इज दैट कि नया डिमांड नया प्रोसेस नहीं होएगा, उसके लिए उन्होंने वैलिडिटी देके रखा हुआ है। वो 2 years और 6 years फ्रॉम द डेट द ओरिजिनल रिटर्न हैज बीन फाइल्ड और 2 years फ्रॉम द डेट द करेक्शन रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। वो पीरियड के बीच में डिमांड नया जनरेट नहीं कर सकते वो लोग, मतलब उसके पीरियड की बियॉन्ड डिमांड नया जनरेट नहीं कर सकते, पर जो डिमांड पहले से जनरेटेड है उसका तो आपको पे करना है। सो अभी अगर आई विल से कि जैसे 12-13 के अंदर ट्रेसेस आया था, तो उसके पहले रिटर्न्स जो थे ना वो सारे एनएसडीएल ने प्रोसेस करके रखे हुए थे, तो उस टाइम पर टीडीएस जो था वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं, डिमांड जो भी था वो प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड नहीं था। आप जैसे नया रिवाइज करते हो तो आपको नया जनरेट करके देता है, तो वो नया जनरेट कर रहा है, वो आज के डेट का जनरेट करके दे रहा है, पुराना जनरेट नहीं करके दे रहा है। So government is trying to improvise it infrastructure, and they are coming up with automated LDC, centralized declaration filing, and CPC processing. Litigation, they have tried to reduce the litigation. कैसे? एक तो मैन पावर का डेफिनेशन, प्रॉपर्टी का जो एग्रीगेशन रूल है वो डिफाइन कर दिया, फैक्ट्री रेंटल इंक्लूड कर दिया। हाँ, देयर इज सम एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट विच दे मे कम अप with the clarification. Rest all the government has already tried that जितना हो सके उतना litigation कम हो। Sector specific, the first staff जो staffing industry है that has have a positive impact because एक तो मैन पावर का definition clear कर दिया है। Second, travel tourism also very welcome step because जो 20% जो hit होता था वो अब सिर्फ 2% रह गया है। स्क्रैप इंडस्ट्री के लिए थोड़ा डिफिकल्ट ये इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज द टीसीएस रेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2%. Real estate, no such benefit or no such impact, mixed impact. Senior citizen, if they are taking the benefit of 194P, जो अभी तक मैंने देखा नहीं है, but if they are taking the benefit, it is a very welcome step. Cross-border consideration, the DTAA benefit is provided, the company can provide DTAA benefit if the person has submitted TRC, valid TRC and Form 10F along with no P declaration. Key structural change, they have decriminalized the various TDS default. पहले क्या था, अगर आपका डिफॉल्ट जो इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा होता था तो डायरेक्टली प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर देते थे, एंड इन द प्रोसिक्यूशन जो इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट था वो 7 years का था. सो नाउ दे हैव ट्राई टू डिक्रिमिनलाइज द TDS डिफॉल्ट. पहला, जहाँ पर पेमेंट जो है वो इन काइंड जा रहा है, लाइक परक्यूजन 194R वाला है, या फिर आप जो TDS जो है वो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर है, VDA के ऊपर, जहाँ पर VDA जो है वो इन काइंड ट्रांसफर हो रहा है. तो जहाँ पर भी इन काइंड है वहाँ पर अगर शॉर्ट डिडक्शन भी है तो फिर भी आपको डिक्रिमिनलाइज किया गया है, वो क्रिमिनलाइजेशन के एक्ट में नहीं आता है. सेकेंड, इफ द डिफॉल्ट इज बिलो 10 लाख रुपीज, तो अगर आपका डिफॉल्ट 10 लाख से कम है तो इट इज डिक्रिमिनलाइज, और उसके अंदर खाली पेनल्टी प्रोविजन एप्लीकेबल होएगा, प्रोसिक्यूशन वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं, इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होएगा. यस, इफ द डिफॉल्ट इज एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज तो इम्प्रिजनमेंट है, बट इट इज नॉट अ रिगरस, इट इज अ सिंपल इम्प्रिजनमेंट, और उसमें भी मैक्सिमम 2 years का करके रखा हुआ है. अर्लियर इट वाज 7 years. तो वो गवर्नमेंट इज ट्राई टू डिक्रिमिनलाइज ऑल द TDS डिफॉल्ट. अब जो चेंजेस आ रहा है उसको हम लोग को कैसे करना है, हाउ टू टैकल इट. तो नया जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आस्क द सॉफ्टवेयर टू मैप द सेक्शन विद द कोड. डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड, टेंटेटिव कोडिंग हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, तो वो सेक्शन नंबर उस कोड से डिफाइन कर दीजिए, मैप कर दीजिए, एंड अपडेट द TDS टेबल. जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर TDS टेबल अपडेट कर दीजिए, सो दैट TDS फ्रॉम 1st April हैज बीन डिडक्टेड प्रॉपरली. As a practitioner, review and update all TDS TCS template. Check
for 194T, whether the partner's TDS has been deducted properly, identify staffing and manpower arrangement. Now, I will going to take the income tax draft rule. अब जो new draft rule जो they have incorporated, which I think so in the month of end of the February, they have come up with the income tax draft rule along with the draft form. So in the rule, what they have done, they have tried to reduce the from 511 to 333, and from 399 old forms, they have reduced to 190 forms only. These are all the various types of forms which is applicable. 126, 15C, 15D, Form 127, that is earlier it was Form 27C. See, the major which is impacted to us is Form 138, जो पहले 24Q था, then Form 140 जो पहले 26Q था, and Form 144 जो 27Q and 143 27EQ. Government have tried to consolidate all the various forms like 26QB, QC, QD, QE. ये जो चार तरीके फॉर्म्स थे उसको कंसोलिडेट करके खाली एक ही फॉर्म लेके आ गया जो फॉर्म है 141. सेम वे दे हैव ट्राइड टू कंसोलिडेट फॉर्म 121 in which 15G, 15H has been incorporated. Now, instead of giving separate declaration 15G, 15H depending on the age, खाली एक फॉर्म 121 would be applicable. सेम वे आपको जो QB, QC, QD, QE के अंदर अलग अलग फॉर्म देना पड़ता था वो अब खाली 141 एक फॉर्म एप्लीकेबल रहेगा. सेकेंड, द बेनिफिट कि एक बायर और एक बायर को अगर मल्टीपल सेलर रहते थे, जैसे 3 सेलर है तो 3 बार फाइल करना पड़ता था, बट अब एक बायर एक ही फॉर्म, या इफ देयर आर मल्टीपल बायर तो मल्टीपल बायर के लिए मल्टीपल फॉर्म लगेगा, बिकॉज दिस फॉर्म इज अ पैन बेस्ड फॉर्म. तो पैन नंबर ऑफ द बायर इज इंपॉर्टेंट. तो अगर मल्टीपल बायर है तो मल्टीपल फॉर्म लगेगा. यस, बट मल्टीपल सेलर है तो आपको एक ही फॉर्म लग जाएगा. वो सेलर का आपको डिफाइन कर, आप एक एक लाइन आइटम ऐड कर सकते हो. ए बी सी जो भी जॉइंट होल्डर है वो सब आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो. एक सेकेंड, this is the amendment in form 138, 140, 143, 144. See, generally जब हम चालान TDS रिटर्न फाइल करते थे तो TDS के अंदर चालान डिटेल्स के अंदर जो ब्रेकअप आता था पहले वो आता था टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, फीस, अदर फीस, इंटरेस्ट एंड देन टोटल इंटरेस्ट, टोटल टैक्स. तो वो ब्रेकअप अब कुछ देने की जरूरत नहीं है. आप खाली टोटल टैक्स, इंटरेस्ट जो आपको अलोकेट करना है, पहले अलोकेट इंटरेस्ट जो है ना वो सेपरेटली लास्ट कॉलम में दिखाते थे, अब खाली इंटरेस्ट अलोकेट और फीस अलोकेट, ये 3-4 चीज़ें आपको दिखानी है. बाकी सारे डिटेल्स जो है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है. तो इसको सिंपलर कर दिया है. आई थिंक वो दिख नहीं रहा फॉर्म, दिख नहीं रहा. इसको तो ये जो ये नया 138, 140, 143 और 144 उसके अंदर कॉमन चालान का डिटेल देके रखा हुआ है. सारे चालान के जो ब्रेकअप्स है वो निकाल दिए. अर्लियर ऑल्सो वेन एवर समवन आस्किंग सर मुझे सरचार्ज अलग से दिखाना है, टैक्स अलग, सेस अलग से दिखाना है क्या, आई वॉज सेइंग कि नहीं वो रिक्वायर्ड ही नहीं है. अब फॉर्म के अंदर ही लेके आ गए, फॉर्म में रिक्वायर्ड दिया ही नहीं है तो आपको सेपरेटली दिखाने की जरूरत ही नहीं है. सेकेंड, दे हैव कम अप दिस सेक्शंस कोड 392(7) के लिए 104, 1005. तो ये अप्रोक्सीमेटली 1001 से लेके 167
सेक्शंस कोड देके रखा हुआ है. तो टोटली दे हैव डिवाइडेड ऑल दी, जैसे जितने नेचर ऑफ इनकम है उसके लिए अलग अलग सेक्शन कोड देके रखा हुआ है. तो ये एक कोड का चेंज आया हुआ है. सेक्शन कोड चलान में है ही नहीं. सिर्फ चलान के अंदर सेक्शन कोड पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है. बिफोर 2012 चलान के अंदर सेक्शन नंबर मेंशन किया जाता था. अगर किसी ने 2012 के पहले का रिटर्न और अभी का रिटर्न वेरीफाई चेक किया है तो यू मे कम टू नो कि जो सेक्शन नंबर जो है वो चलान से निकाल के डिडक्टिव शीट में ले लिया है. तो डिडक्टिव शीट के अंदर अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 चीजें ही देनी पड़ती है, बाकी कोई रिक्वायर्ड नहीं है. सो एनी डाउट टिल नाउ? Which that was not required only. That also has been done. So जो कंपनी नॉन कंपनी जो भी बाइफिकेशन था वो सारे बाइफिकेशन निकल चुके हैं. अब चालान जो पेमेंट करना है वो आपको सिर्फ 10 नंबर के ऊपर चालान पे करना रहेगा. ये सेक्शन कोड चालान पेमेंट के टाइम भी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा. आपको चालान पेमेंट के टाइम सिर्फ और सिर्फ ना आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और कुछ नहीं. और वो चालान आप +1 -1 में यूज कर सकते हो. वो चालान का उन्होंने अभी तक यूटिलाइज करके रखा हुआ है. सी +1 -1 भी क्यों दिया था? बिकॉज देयर वॉज एन एरर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. अब एरर क्या था? अपना टीडीएस रिटर्न जो है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज बेसिस है. हाउएवर जब भी आप चालान पे करते हो तो वो पूछते थे असेसमेंट ईयर. आप टीडीएस ईयर फाइनेंशियल 24-25 का पे ना फाइल कर रहे हो और चालान आपको करना है असेसमेंट ईयर 26-27. तो वो कंफ्यूजन था. अगर कोई पर्सन एज अ क्वालिफाइड, वी अंडरस्टैंड की डिफरेंसेस, बट all these returns were filed by a non qualified person majority of the time. तो उनको वो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में डिफरेंस नहीं समझ में आता था. बिकॉज ऑफ इट देयर आर मेजर करेक्शंस बाय द डिपार्टमेंट कि ये करेक्शंस और वो करेक्शंस को सेव करने के लिए डिपार्टमेंट ने +1 -1 का रूल लेके आए थे. एंड नाउ इट इज कंपल्सरी फॉर डिपार्टमेंट टू कैरी फॉरवर्ड. बिकॉज डिपार्टमेंट ने एक सर्वे निकाला था, अपने इंटरनल सर्वे चेक किया था कि +1 -1 कौन यूज कर रहा है. दे हैव कम टू नो के 80% ऑफ द डिडक्टर आर यूजिंग दिस फैसिलिटी +1 -1 का. हाउ? जनरली वो मार्च के अंदर जनरल जो प्रोविजन जो चेक पे करते हैं वो चलान वो लोग +1 के अंदर यूटिलाइज करते हैं. तो वो जो 80% to 90% दे आर यूटिलाइज, मेनी पीपल आर यूटिलाइजिंग इट, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. एंड व्हेन दे हैव स्टडीड कि वो इम्पैक्ट का क्या आएगा तो दे हैव कम अप विद द, not I will say कि formally they have not told, but informally they have communicated कि नहीं, they are continuing with +1 -1 rule. Temporarily I will say कि till 1 or 2 years they will continue unless until they come up with the specified provisions, and after coming up with the specified provisions they will provide 1 or 2 years gap also. डायरेक्टली ऐसा नहीं करेंगे आज से ये प्रोविजन आ गया तो एप्लीकेबल नहीं रहेगा. दे विल, इफ दे आर कमिंग अप विद दिस प्रोविजन देन दे विल कम अप विद द रिलैक्सेशन ऑल्सो कि टिल 36 मार्च. इट मे बी, बट करंटली दे आर फोर्सफुली अंडर. आफ्टर एनी डाउट, एनी क्वेरी? All this, yeah. I am not been able to hear you. Yes. If the PAN is not linked with the Aadhaar, the TDS, the person's PAN number is considered as an inoperative PAN. इनऑपरेटिव पैन है तो वो 20 पहले 206AA एप्लीकेबल था, अब 397 एप्लीकेबल है. तो उसके हिसाब से जो टीडीएस रेट रहेगा वो डबल और 20% विच इज हायर. डिडक्टिव विल गेट फुल क्रेडिट एज सुन एज डिडक्टिव अपना पैन लिंक कर देता है, उसके 26 एज के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है और उसका फुल बेनिफिट डिडक्टिव ले सकता है. बिफोर दैट वो पर्सन इज नॉट अलाउड टू फाइल द रिटर्न. तो कैसे क्रेडिट लेगा? अगर मैंने अपना पैन आधार से लिंक ही नहीं किया तो मैं आईटीआर फाइल नहीं कर सकता.
नहीं दिखेगा, वो दिखेगा 26 एस के अंदर रिफ्लेक्ट होएगा, 26 एस में रिफ्लेक्ट होएगा, बट द पर्सन कैन नॉट टेक द क्रेडिट बिकॉज ही इज नॉट अलाउड टू फाइल द रिटर्न। एज सुन एज वो पैन लिंक हो जाता है तो वो रिटर्न फाइल कर सकता है और फिर वो क्रेडिट ले सकता है। एनआरआई के लिए, सी एनआरआई के लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एग्जाम्पशन देके रखा हुआ है, अगर आप 27 क्यू रिटर्न फाइल करते हो तो वो पैन ऑपरेटिव चेक ही नहीं होता है, देन इट इज हिज फॉल्ट, डिडक्टर की गलती है, तो डिडक्टर की गलती है उसमें कोई इशू नहीं, उसमें नहीं कर सकते। एनआरआई है तो सिर्फ उसको टीडीएस का जो है 26 क्यू से 27 क्यू करना है, बट अगर वो एनआरआई है तो ऑटोमेटिकली टीडीएस हाई रेट पर डिडक्ट होना चाहिए, तो वो तो 20% फिर भी कम करके रखा हुआ है। वो तो 20% क्रेडिट तो ऐसे भी मिल जाएगा एनआरआई के अंदर, सी क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं नहीं 27 अगर एनआरआई है और उसका 26 क्यूब मतलब रेगुलर रिटर्न के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करके रखा एज ए रेसिडेंट, देन ऑल्सो उसको क्रेडिट मिलेगा बिकॉज वो 26 एस में उसके इसमें कंप्लीटली दिखेगा, और वो सिंस ही इज एनआरआई ही इज अलाउड टू फाइल द रिटर्न विदाउट आधार, उसके अंदर उसको क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक वो ब्लॉक नहीं किया कि अगर आपका आधार नहीं है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, रिफ्लेक्ट होता है उसका क्रेडिट मिलेगा। यस सी सेस जो प्रोविजन एप्लीकेबल है वो सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए है, और नॉन रेसिडेंट के अंदर भी जो बेसिक रेट है उसके ऊपर सेस एप्लीकेबल होता है। अगर बेसिक रेट के ऊपर टीडीएस कोई कट होता है उसके ऊपर सेस का इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, और आज के तारीख में वी हैव सीन दैट कि सेस अगर आपने नहीं डिडक्ट करके रखा हुआ है तो भी शॉर्ट डिडक्शन नोटिस नहीं आ रहा है, क्योंकि सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक रेट के ऊपर डिडक्ट होता है। सो बेसिक रेट और 20% वो चेक किया जाता है, अगर बेसिक रेट ज़्यादा है तो बेसिक रेट के हिसाब से होगा, अगर आपका एजुकेशन वो स्पेसिफाइड रेट या पेनल्टी रेट ज़्यादा है तो 20% से डिडक्ट होगा। यस सर, procedural work everything is same, only thing they will come up with the new compliance new portal where you can file your tds return, you can submit your revised return also। अभी हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एक ई फाइलिंग है और एक एनएसडीएल है। ई फाइलिंग के ऊपर भी एक लिमिट देके रखा हुआ है कि अप टू 10 लाख और 15 लाख एंट्रीज तक ई फाइलिंग पर अपलोड होता है, उसके बाद वो ई फाइलिंग पर अपलोड नहीं होता, उसके बाद आपको अगर आपको रिटर्न अपलोड करना है तो एनएसडीएल के ऊपर ही अपलोड करना है, बिकॉज वो 15 लैक्स के ज़्यादा एंट्रीज वाले का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, सो दे आर फेसिंग द डिफिकल्टीज इन ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम ई फाइलिंग टू ट्रेसेस। तो इसके लिए दे विल कम अप with the procedure or with the new act or new 2.0, there would be an option you can submit the return on traces portal itself। see इसका dual benefit है, एक traces is applicable for TDS, तो TDS के लिए आपके सारे काम traces पर हो जाएगा। सेकेंड we have seen that कि many time जब आप कोई रिटर्न ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर अपलोड करते हो तो रिटर्न रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज वाइल ट्रांसफरिंग वो रिटर्न के अंदर कुछ ना कुछ एरर आता है और वो रिटर्न रिजेक्ट हो जाता है, और उसके अंदर जो रिजेक्शन जो आता है वो ये आएगा कि योर टैक्स क्रेडिट इज मिसमैच इज देयर, योर चलान मिसमैच इज देयर, ऐसा एक वेग रीजन लिखा हुआ आता है, बट द मेजर रीजन इज बिकॉज देयर इज अ इशू इन ट्रांसफरिंग द टीडीएस रिटर्न फ्रॉम ई फाइलिंग पोर्टल टू ट्रेसेस पोर्टल, सो वो रिटर्न रिजेक्ट हो रहा है। वही सेम रिटर्न अगर आप एनएसडीएल पर अपलोड करोगे तो वो रिटर्न रिजेक्ट नहीं होता। That because of this multiple issues, they are coming that in 2.0 itself TDS would be uploaded so that processing के लिए और किधर जाना ना पड़े। Yes, चालान पेमेंट के लिए फॉर अ टाइमिंग वी हैव टू गो विद इनकम टैक्स पोर्टल ओनली, या उस सेक्शन नंबर का जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि सेक्शन नंबर निकल जाएगा। अब वो चालान भी जो आप पेमेंट करोगे वो फाइनेंशियल ईयर वाइज पेमेंट रहेगा, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, टैक्स ईयर। यस यस सर,
प्रोफेशनल को उन्होंने डिफाइन करके रखा हुआ है डिग्री से ही, लिंक करके रखा है डिग्री से। तो अगर वो डिग्री है तो प्रोफेशनल है, वरना नहीं है। टेक्निकल में जा सकते हैं, टेक्निकल के अंदर जा सकते हैं। Any other questions or any other query or any other difficulties which you are facing? No, who is asked? Rate, yeah. It is excluding surcharge. जो भी LDC के ऊपर रेट मेंशन किया जाता है वो एक्सक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस है। यस सर, हाँ उसमें सरचार्ज और सेस ऐड करना है। यस सर, टू ईयर्स, यस। See why it is coming. Yes, yes. See why is coming के इंटरेस्ट जो टीडीएस रिटर्न जो कैलकुलेट करता है वो कैलकुलेट करता है जब तक आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ है। प्रोसेस होने के बाद वो एक स्टैग्नेंट मोड पर चला जाता है। तो अगर वो टीडीएस रिटर्न स्टैग्नेंट मोड पर चला गया तो अगर आप 2 साल बाद या 3 साल बाद भी देखोगे तो सेम इंटरेस्ट दिखेगा। बट एज सुन एज आप इंटरेस्ट पे करते हो तो वो रिटर्न फिर से रीप्रोसेस होता है। जब वो रीप्रोसेस होता है तो फिर से वो इंटरेस्ट रिकैलकुलेट करता है टिल द पेमेंट, टिल द डेट द इंटरेस्ट चालान हैज बीन पेड। तो आपको इंटरेस्ट जो है वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल यू हैव मेड द पेमेंट आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा। yes. नहीं, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट और फीस है तो भी इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। नो, वो हो रहा है अभी। अगर आपका इंटरेस्ट और फीस है, जैसे इन माई वन ऑफ माई क्लाइंट केस, अभी हमने 14-15 का कुछ 20 lakhs का चालान पे किया था और उसके अंदर डिफॉल्ट जो था वो सिर्फ लेट फाइलिंग फीस ही था, लेट फाइलिंग फीस और इंटरेस्ट। आफ्टर पेइंग दिस 20 lakh वी हैव रिसीव वन मोर नोटिस ऑफ 21 lakhs कि ये और एडिशनल पे करना है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो वो आपको पे करना ही करना है। बिकॉज जो सिस्टम क्या करता है, जिस टाइम रिटर्न प्रोसेस हुआ तब तक का प्रोसेस करके रखा। एक्ट भी बोलता है जैसे ही रिटर्न प्रोसेस हुआ डिमांड नोटिस आपको आ जाता है। प्रोसेसिंग ऑफ द रिटर्न मतलब आपको डिमांड नोटिस आ गया। डिमांड नोटिस आपको 1 महीने के अंदर क्लियर करना है। अगर आप 1 महीने के अंदर क्लियर नहीं करते तो 1 महीने के बाद से उसके ऊपर इंटरेस्ट चालू हो जाता है, डिमांड के ऊपर इंटरेस्ट। See, the processing is stopped only for the giving of the credit. प्रोसेसिंग स्टॉप का मतलब है क्रेडिट गिविंग, जो क्रेडिट दे रहे हैं वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रहा है, या रिटर्न आप पेमेंट करने के बाद जो रिटर्न प्रोसेस करते हो वो स्टॉप नहीं हो रहा है अभी भी। जैसे अभी डिमांड मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जैसे अभी 17, 18, 19 का आप अगर पे करते हो तो डिमांड मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आपको रिटर्न प्रोसेस करना पड़ता है। तो जैसे ही आपने वो डिमांड मैनेजमेंट के थ्रू प्रोसेस किया तो फिर से वो रीप्रोसेस करता है पूरा रिटर्न को और चेक करता है कुछ एडिशनल इंटरेस्ट या एडिशनल डिफॉल्ट है या नहीं है, और फिर वो आपको नया डिमांड जनरेट करके दे देगा। सो प्रोसेसिंग ऑफ द स्टॉपिंग मीन्स दे विल नॉट प्रोवाइड द क्रेडिट टू द डिडक्टी, बाकी रिटर्न पूरा प्रोसेस होएगा। यस, सी फॉर्म और कंपनीज के अंदर ऐसा डिफाइन किया हुआ है। सी एज अगर चार्टर अकाउंटेंट कंपनी के थ्रू कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है देन इट फुल कंसिडर अंडर FTS ओनली, नॉट FPS। बिकॉज इसका रीजन क्या है, लॉजिकली और लीगली चार्टर अकाउंटेंट कैन नॉट मेक अ कंपनी। वो अगर कंपनी के अंदर थ्रू सर्विस प्रोवाइड कराता है तो वो अपना मेंबरशिप और अपना वो सरेंडर करके फिर वो कंपनी का डायरेक्टर या कुछ बनता है। तो अगर वो सर्विसेज थ्रू वो कंपनी प्रोवाइड करा रहा है तो FTS के अंदर आएगा, नहीं FPS में नहीं आएगा। इसके लिए जो जब भी FTS और FPS देखते हैं तो सबसे पहले देख लेगा डिडक्टी कौन है। कंपनी है तो आग बंद करके आप FTS ले सकते हो, फर्म इंडिविजुअल है तो चेक करने का कि कौन है सर्विस प्रोवाइडर कौन है। और वो सर्विस प्रोवाइडर के अंदर भी अगर आपको फाइट करना है तो यू कैन चेक कि सर्विस कौन से इन नेचर है। जैसे मैं CA हूं और मैं खाली रिटर्न फाइलिंग का ये दे रहा हूं
तो रिटर्न फाइलिंग के अंदर मेरा कोई सर्टिफिकेट का कुछ यूज़ नहीं आ रहा है। जहाँ पर मेरा सर्टिफिकेट, जहाँ पर मेरा ऑडिट और जहाँ पर मेरा ओपिनियन यूज़ आता है, वहाँ पर वो एफपीएस हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें तो एफटीएस में आती है। यस सर। यस यस, सी टीडीएस के अंदर अगर आपका कोई भी डिफॉल्ट हो तो आपको पहले चालान पे करना है और वो चालान को टीडीएस रिटर्न के अंदर टैग करना है या रिवर्स रिटर्न फाइल करना है, तभी जाके आपका टीडीएस का डिफॉल्ट कम होएगा, वरना आपका टीडीएस का डिफॉल्ट कम नहीं होएगा। अगर मैंने खाली चालान पे करके रखा हुआ है तो टीडीएस डिफॉल्ट कम नहीं होएगा। सी ये हमने बहुत से केसेस में देखा है। यस यस यस, अभी आप ये देखिए, ये चालान का स्क्रीन देखा था आपने, इसमें ये इंटरेस्ट और फीस का अलग से कॉलम देके रखा हुआ है। पहले चालान के अंदर जो अभी करंट टीडीएस चालान देखते हैं तो वहां पर ये जो चालान है ना, ये के बाद जो 2 कॉलम देके रखा हुआ है इंटरेस्ट और फीस, अगर वो चालान के अंदर आपने इंटरेस्ट और फीस उस कॉलम में दिखा के रखा हुआ है तो ही आपका वो टैग किया जाएगा। अगर आपने स्टार्ट में इंटरेस्ट और फीस में दिखा के रखा हुआ है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं देते। यस, चालान एडिशन के लिए आपको ऑनलाइन करेक्शन करना है और ऑनलाइन करेक्शंस के लिए आप जैसे कंसोल फाइल रिक्वेस्ट करोगे तो उसमें चालान एडिशन का ऑप्शन आता है। चालान एडिशन के टाइम आपसे पूछा जाता है इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग फीस एलोकेशन कितना करना है, उसके अंदर आपको अमाउंट डालना है। खाली चालान ऐड करने से नहीं होगा, जब तक आप इंटरेस्ट और फीस के अंदर एलोकेट नहीं करते उस अमाउंट को तब तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यस यस यस, तभी तो हमने देखा है कि इनिशियली राइट फ्रॉम 7-8 टिल 2024 तक हमने केसेस देखे जहां पर कंपनी का डिफॉल्ट है पर कंपनी का अवेलेबल बैलेंस भी है, कि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज व्हाट दे वर डूइंग, अच्छा 10,000 का डिफॉल्ट है, चलो चालान पे करके रख दो। यस यस, तो इसके लिए वो अवेलेबल बैलेंस देख रखा हुआ है, तो वो अवेलेबल बैलेंस जैसे आप टैग करोगे तो वो आपका डिमांड निकल जाएगा। सी अवेलेबल बैलेंस जब आप चालान टैग करते हो ना तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कब तक करेगा, जब तक आपने चालान पे किया है, ये नहीं कि जब आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ है। It is a demand management system which they have come up with from 1st April from 1st January onwards। इसके अंदर आपका कोई भी पुराना डिमांड है 18-19 से पहले का, वो आप इस तरह से टैग कर सकते हो। 18-19 के बाद का डिमांड है तो फॉर अ टाइमिंग आपको रिटर्न रिवाइज करके फाइल करना है। हाँ, आपको चाहिए कि नहीं मुझको रिटर्न रिवाइज नहीं करना है तो आप 20 दिन और रुक जाइए, उसके बाद ये सिस्टम बंद हो जाएगा तो आप डीएमएस के थ्रू टैग कर दीजिए। अगर किसी को चाहिए कि मुझे पूरा कंसोल फाइल डाउनलोड करके रिटर्न रिवाइज नहीं करना है तो 20 दिन रुक जाइए, 20 दिन के बाद वो अपना बंद हो जाएगा, उसके बाद आप डीएमएस यूज करके उसको टैग कर दीजिए। एक बार में 5 चालान का रिफंड एप्लीकेशन कर सकते हो। मल्टीपल चालान में 5 का अलाउड करके रखा हुआ है, बट रिफंड एप्लीकेशन के अंदर मेक श्योर कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एक्सेस पेड दिखाओ। We'll have one last question. चालान अनकंज्यूम का तो कंडीशन वो रहता ही है कि चालान का जो रिफंड अमाउंट जो है दैट इज मैक्सिमम अप टू द मिनिमम अवेलेबल बैलेंस चालान। अगर मेरा एक चालान मैंने 10,000 का पे किया, मैंने यूटिलाइज किया 9,000 रुपीज़, अभी बैलेंस है 1,000 रुपीज़, फिर मैंने रिटर्न रिवाइज किया और उसके अंदर अवेलेबल बैलेंस आ गया 8,000 रुपीज़, तो मैं 8,000 को रिफंड नहीं क्लेम कर सकता। मेरा मैक्सिमम रिफंड अमाउंट जो है ना वो 1,000 ही रहेगा, बट वो 1,000 के लिए भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर प्रोविजन रहना चाहिए कि मैंने एक्सेस टीडीएस दिखाया है, किधर ना किधर एक्सेस टीडीएस दिखा के रखा हुआ है, क्योंकि आपको सेटिस्फाई करना है एओ को कि यस दिस इज एन एक्सेस पेमेंट। यस सर।
सी करंटली जो चालान यूटिलाइजेशन का जो रूल है वो 1+-1 का है. हाँ, तो वो देन यू कैन यूटिलाइज इट कि जब तक गवर्नमेंट के पास ओरिजिनल डेटा नहीं जाता तब तक गवर्नमेंट को मालूम नहीं पड़ेगा आपने क्या फॉल्ट किया. हाँ, अगर आपने एक बार एंट्री कर दिया है, गवर्नमेंट के पास एक बार डेटा जा चुका है, उसके बाद यू कैन नॉट डू. उसके बाद अगर आपने एक सेक्शन नंबर का एक अमाउंट या डेट भी चेंज किया तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है ये यू हैव मेड दिस करेक्शन और यू हैव मेड दिस ट्रिक. जनरली लोग लेट फाइलिंग फीस से बचने के लिए डेट ऑफ पेमेंट चेंज कर देते हैं. 26 क्यूबी के अंदर बहुत देखा है. तो ये आई वुड से दैट राइट फ्रॉम स्टार्ट टिल 2022 तक आप डेट चेंज करते थे, वो अलाउ हो जाता था. आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं थी 26 क्यूबी के अंदर. बट आफ्टर 22 ऑनवर्ड्स दे हैव कम अप कि आप जब भी डेट चेंज करोगे ना तो आपको पहले एओ के पास जाना है. एओ उसको वेरीफाई करेगा कि आप प्रॉपर है, उसके बाद ही प्रोसेस होता था. तो जहाँ पर भी अपन सी बोलते ना तू पाल पाल मैं पात पात, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे डिपार्टमेंट भी अपने से सीखते हुए जा रहा है और वो इसको क्रैप करने की कोशिश कर रहा है. Thank you, Ravi. थैंक यू. It was a wonderful session. You would have gone through around 9:30 also you can take, we know that, but due to time constraint, we have to stop. I request CS Rayans to propose a well-deserved vote of thanks. Thank you, CA Ravi Soni, our present convener and today's second speaker for such an engaging seminar. He's our go-to man for any queries related to TDS and TCS. With a detailed presentation and practical examples, he has covered the changes in Income Tax Act 2025. It will help all the members to be ready from 1st April 26. Request all the members to present a huge round of applause once again to CA Ravi Soni.